Coming to this very or the most important class is PPSC, the analysis. See, for preparing for any exam in your life, there are sharks who are misguiding you. है ना? 99% over here have attended one or the other kind of business, not an education. Right? So any paper you attempt in life, you must know two things. सब तो पहला the syllabus, then the question paper, so that from these ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਇਹ ਪੇਪਰ ਕੀ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੈ what how where to cover it and when for current affairs especially. For instance, for Punjab PCS 6 to 8 months current affairs for the exam from the date of the exam previously make up 70% of the questions, right? So ये दोनों चीज़ां जो ਆਪਾਂ एनालिसिस करना है, right? चाहे फ्री च सही ਆਪਾਂ एनालिसिस देखो कितना बढ़िया लेके आए. So first we would begin with analysis. Look at this very good idea over here. The polity and governance portion forms about 15 to 20 questions. ये मिलेगी PDF आपको 15 to 20 questions. Just एक broad एक बात बताऊं, अगर जे एक गल करनी होए current affair plus polity make up 40% of the question paper. Thank you. And fortunately for me and unfortunately for you, both these things would be covered by me personally. तंग बहुत करांगे ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ही आए हैं, कितने साल हो गए, है ना? So 40% of the paper is made about this. Then history culture जी 12 to 18 questions. India and Punjab, basically modern is more than medieval and that is more than ancient, right? But this time इन्होंने स्पेसिफिकली मैंशन किया है कि पंजाब जीके के सवाल वधनगे, पर सर वो तो मेन्स च लिखे है की मतलब मेन्स की है, मेन्स इज द नेक्स्ट स्टेज टू द प्रीलिम्स. सो आई एक्सपेक्ट एनीथिंग बिटवीन 15 to 20 क्वेश्चंस ऑन पंजाब. 2-3 रीजंस फॉर इट, और मे बी इवन 30. हिमाचल प्रदेश पेपर 30 क्वेश्चंस ऑन हिमाचल जीके. राजस्थान पेपर 30 क्वेश्चन राजस्थान जी के. यूके पेपर, यूके नॉट यूके किंगडम, द उत्तराखंड 30 क्वेश्चन ऑन यूके जी के. सो व्हाई नॉट पंजाब? बिकॉज अर्लियर वी ऑलवेज हैड, डू यू रिकॉग्नाइज और रियलाइज दिस, पंजाब ऑलवेज हैड कांग्रेस और बीजेपी विद अकाली. सो दे ऑलवेज हैड नेशनल पार्टीज रूलिंग, सो हेंस दे हैड नेशनल क्वेश्चंस. नाउ इट इज the who is ruling there? की ना है उन्होंने, ये ना थोड़ी है उन्होंने, श्री भगवंत मान जी, he is ruling over there. So he likes शहीद भगत सिंह जी, he likes साइकिल ते टिप्पणी लाना, मजाक करना, नदियां, है ना? So it is very likely that Punjab GK might become from these 8 to 12 questions about 20 questions, right? So looking at the analysis, we must, आप अपने पास ऐसा simplified बना लेना. करंट अफेयर सबसे बड़ा, उसके बाद पॉलिटी, उसके बाद हिस्ट्री, उसके बाद देयर इज ज्योग्राफी. वो तो बात जी साइंस एंड टेक, आई थिंक, यस, साइंस एंड टेक. आफ्टर दैट there is, let's say, the miscellaneous category, अरिहंत type of category. कोई रह गया हो जी? economy comes over here somewhere, over here लो economy, environment and then miscellaneous. So history च की issue है जी? history दे questions ਆਪਾਂ सारा कुछ नहीं जान सकते. अपनी कहानी सुनाना दैट आई कवर्ड हिस्ट्री कल्चर वेरी वेल. यूपीएससी प्रीलिम्स, पहला प्रीलिम ही यूपीएससी का ਆਪਾਂ कल्चर बहुत ਵਧੀਆ तरीके नाल करिया, बट क्वेश्चंस वर सच दैट कि कुड नॉट आंसर. फिर मैं सोचा अच्छा है कि बुद्धिज्म ते जैनिज्म में पूछते हैं
ਇਹਦੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਉਹ ਕਲਚਰ ਦੀ ਨਾ ਇੱਕ ਸਪੈਕਟਰਮ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਜਿੱਦਾਂ ਮਾਡਰਨ ਹਿਸਟਰੀ ਆਉਂਦੀ ਉਹਦਾ ਕਲਚਰ ਦੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਆਈ ਕਵਰਡ ਦੈਟ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਸੈਕੰਡ ਵੀ ਪ੍ਰੀਲਿਮ ਤਾਂ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਆਰ ਰਿਲੇਟਡ ਵਿਦ ਬੁੱਧਾ's ਲਾਈਫ। ਆਈ ਨੈਵਰ ਨਿਊ ਦੈਟ, देयर इट वाज नॉट मेंशन। देन थर्ड टाइम प्री फिर क्लियर हो गया, देन थर्ड टाइम अगैन फिर आ सोचा भी चलो MA वाली ਜਿਹੜੇ ਨੋਟਸ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਏ, ਸਭ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5-6 ਹਜ਼ਾਰ ਫੈਕਟ ਯਾਦ ਕਰ ਲਏ ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ ਤੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪੋਜ਼ ਖੜਾ ਬੁੱਧਾ, ਉਹ ਪੋਜ਼ ਖੜਾ ਬੁੱਧਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨੋ ਬੁੱਕ ਐਟ ਆਲ ਐਟ ਦੈਟ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਲਏ ਇੰਨਾ ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ ਜੈਨਿਜ਼ਮ ਕਲਚਰ ਉਹਨਾਂ ਕਰੋ ਕਿ ਡਰਾ ਖੇਲ ਲੈਣਾ ਆਪਾਂ, है ना। we cannot, we do not want to, we do not have to fight with PhDs of culture। भाई 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, एक एवरेज एस्पिरेंट जो 4 आंसर कर रहे हैं 5 कर रहे कर लो, बाकी हैक भी तो करने है ना, हो जाते मैम UPSC guaranteed, right। so going further, what might be the view over here। so if dealing with all these, I would suggest focus upon पॉलिटी। करंट अफेयर इज वेरी वेरी एनोनिमस, ये कुछ भी पूछ रहे हैं, है ना, मतलब ऐसे सवाल पूछ रहे हैं जो वो बोलते हैं कॉमेडी में कि आंसर होता ही नहीं होगा, राइट। अर्थ एंड पिक्चर किसका सिंबल है, भैया मुझे क्या पता, राइट, कैस मार सकते हैं बट कवरेज इज टफ। सो फॉर दिस आई विल नॉट से जैसे 2 साल 3 साल 10 साल 50 साल के भी करवा रहे हैं लोग करंट अफेयर, मुझे नहीं आते। I'll say 6 to 8 months के current affair. This is something I want you to focus upon. We'll do it in quite details because this is an exam about fact. Last year analysis of the video of 2021 analysis you might have seen, right? So ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਕੁਝ भी पूछ रहे हैं, so इसमें हम 50% ले जाएं। सच बड़ा कड़वा होता है ना, आई कैन से 100% आ जाए, आ ही नहीं सकता। इसमें से 100% तो पिछले 10 साल से UPSC में आ रहा है, ये तो होगा या होगा 100% गारंटी ना कह सकता हूँ मैं। 12 साल हो गए जी, नोट्स तो बाहर नहीं है। एनीबडी इज अटेंडेड दैट एंड गिवन द एग्जाम, दसो आया हो तो आ ही नहीं सकता, है ही नहीं हो तो बाहर कुछ, राइट। सो फोकस अपॉन दिस and either of your choices, economy history, ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਚੱਕ ਲਓ, and the dreaded one science, ਇਹਦੇ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਹੋਣਾ, ਹੈ ਨਾ। this is the difference maker। ਇਹ ਆਂਦਾ ਹੈ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਿਖਾ ਦਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਚੱਕ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਫਰਟ ਹੈ, and ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਚੱਕ ਲਓ। this is the strategy। science is necessary। And again, unfortunately or fortunately for me, unfortunately for you, non science background वालियां नु science simplify करना मेरी जिम्मेवारी। I have taken it upon myself having IIT engineers and doctors over here। मैं कह रहा लोगों नु मैनू इदा लगता शायद मैनू नहीं आती होगी भी साइंस समझ नहीं आती। किन्ने लोग है जिन्हें लगता यार साइंस नहीं आती, और कोई सारे नू आती है? जनाब मैनू ये दस्यो एक बारी, ये जी ग्रेविटेशनल वेव्स है, इन्हां दी स्पीड कितनी होती, 10 किलोमीटर पर आवर, 20 30 50, कितनी स्पीड से चलती हैं? थानू नहीं, उन्होंने पूछना जिन्होंने साइंस आती है। मैडम 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 हाँ जी, ये जड़ा कह रहे थे नहीं आती उन्हें आंसर दे। व्हाट डज इट से अबाउट द क्लास यार, वेरी फनी। एक ने हाथ उठाया सी कि मैनू नहीं आती, उन्हें ही आंसर दे। क्यों जी, कितों पढ़े साइंस? जोर दी बोल रहे कर यार, हाँ कॉन्फिडेंस नहीं, बट ग्रेविटेशनल वेव्स, राइट, दे turn by speed of light। Anyhow, that was just a question। So we will be covering according to weightage and have a personalized strategy for everybody। Even I am planning कि 10 mentored students भी per teacher दे दांगे। ਇਹਦੇ ਲਈ ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ, draw ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ we'll decide that। I cannot have all 300, nobody can handle that, right? So going ahead,
PYQ एग्जांपल्स देखो जी, सिंपल सिंपल क्वेश्चन। विच आर्टिकल्स डील्स विद इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी 352। देन करंट अफेयर्स वाला जी, इंडिया आ देखो बदतमीजा का सवाल 2022 ਦੇ पेपर च आंदा है जी, ग्लोबल हंगर इंडेक्स च इंडिया का रैंक कितना है। UPSC asks who publishes it, what are the parameters, they ask you कितना रैंक है, 100, 101, 99, 98, करो जी गैस। मतलब दिस इज बदतमीजी है ना, आ की क्लर्क बनाना तुसी, बट जे अगले पूछते हैं तो सानू आंसर करना है ना, राइट। देन फर्दर जी एग्जांपल जी देख रहे हैं। फर्स्ट सिख रूलर ऑफ पंजाब, दिस पर्सन ओवर हेयर महाराजा रणजीत सिंह जी and Guru Nanak Dev Ji are the most important people for this exam। जिथे 400 ऑप्शन आनी है ना, 100 क्वेश्चन 400 ऑप्शन, जे पूरे पेपर च हैक दे रहे हैं थानू, दो चीज़ां कहांगा, 2 नंबर 4 नंबर आ जाएंगे। पहली गल, जे 400 ऑप्शन 400 ऑप्शन ने, एक ऑप्शन कल ही महाराजा रणजीत सिंह लिखी है अक्रॉस ऑल क्वेश्चन। डू नॉट इवन रीड द क्वेश्चन, आंसर इज महाराजा रणजीत सिंह, माई गारंटी। जे ना होया 2 नंबर घरों कट के दूँ आउट ऑफ 400। ये नहीं पहला सवाल आ चुका रणजीत सिंह जी का, दोबारा कर रहे हैं। नैक्सट हैक, गुरु नानक देव जी ने इन्हां च किस रूलर बारे लिखिया। वट एवर माइट बी द ऑप्शंस, कंटैंपररी बहुत दे सीगे अपने गुरु नानक देव जी, बट उन्होंने राइटिंग से सिर्फ बाबर के बारे लिखिया, ओनली बाबर। 4, 5, 6 नंबर जेडे आने आ गए, सही। सो गोइंग फर्दर, नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्योग्राफी द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर passes थ्रू हाउ मेनी स्टेट्स, राइट। सो 8 केड़ी केड़ी स्टेट्स ने जी, हाँ जी मैम, मैम हाँ जी, नहीं नहीं ऐसे नहीं, ऐसे ही बताना है, लिख लो सारे। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कितने जाओगी, मणिपुर की मिजोरम। This is how I used to remember, just an example. If you are good at raktobaji or good at retention, it's your choice. But I think this is not a college exam, तो याद रट्टे देना नहीं रहना। Great is Gujarat, Rajasthan, Gujarat, Rajasthan. Man is मध्य प्रदेश कि मणिपुर, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, राइट जी। आई ट्राई टू लर्न इट लाइक दिस, तो याद रह जाता सी, हुण 15-20 साल पहला पढ़िया होना। दिस इज हाउ आई यूज टू रिमेंबर, बट अगैन ऑल इज सबजैक्टिव, जिदा थानू याद होंदा उदा कर लेना, ठीक है जी। एग्जाम्पल देख लिया आपां, एग्जाम्पल्स होर भी देखांगे। पॉलिटी दे ना पहला आपां की कर रहे हैं, 2 गल्लां कर रहे हैं, कवरेज किद्दां होनी चाहिए है, वट इज द एनालिसिस, राइट। देन साइंस एंड टेक चंद्रयान 2 लॉन्च साइट, राइट जी। देन this is economy committee recommending GST. GST is a very important topic. I expect a question upon GST compensation and related funds, related topics. Why? पंजाब दे मान साहब आही रोई जाने कि ओ कमला जिहा घूमदा रहिंदा है, कदे किसे देश कदे किसे देश। बट एक सेकंड जी, यार हैंड रेज वाले प्लीज बोल के बता दो मुझे यार। एवरीबडी हु वांट्स टू रेज देयर हैंड्स और आस्क मी एनीथिंग, प्लीज आस्क मी थ्रू स्पीकिंग अप। यू हैव द माइक कंट्रोल्स, हैंड रेज कर दो तो आई एम अनेबल टू स्टॉप देयर, राइट। चरणप्रीत कौर जी हैंड रेज किया, दसो की गल है कि उदा ही हो गया। चलो एनी हाउ, सो PYQ एग्जाम्पल देख रहे थे आप,
We have seen these subjects, science and tech, launch side. They have not asked Chandrayaan 2 च केड़ा engine use होया है, GSLEP launch side कौन सी है ना? Look at the type of questions. Environment, carbon credit is linked to which protocol? Kyoto protocol. अब Kyoto protocol को किसने replace करा है? What has replaced Kyoto protocol? खड़ जाओ, दुश्मन बन जाना लोगों ने थोड़े, जब आंदा होए ना चुप बैठे देखी जाओ, जे अगला पूछे तो मैनू आंदा पता कि जे तुसी कमरे च बैठे सब तो सियाने तुसी हो तो थोड़ा नुकसान हो रहा फिर, है ना? Which pact has replaced Kyoto protocol? हाँ जी जोर जी, Paris agreement. Paris agreement under which agreement is this protocols? UNFCCC, right? Anyhow, so ये समझ आ गया जी, founder of Patiala. Look at the questions from Punjab जी के, who was the founder of Patiala? एक टेबल लेना तो याद हो गया सारा, ए सिटी का ए फाउंडर, इनू ए कहते हैं. वेरी सिंपल राइट, यू डोंट नीड टू गो फॉर दैट बिग 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 हमारा हिंदुस्तान, हमारा पंजाब. आई होप यू अंडरस्टैंड, right? You do not need that at all. Then what are the key takeaways here? These are the points we must remember. As I said, polity and current affairs make 40% of the paper, right? पर current affair ਨੂੰ decipher करना थोड़ा जा औखा है ना, जेड़ा रब बनया होया उन्होंने कहा पेपर के बाद मिली, फिर नवे स्क्रीनशॉट अंडरलाइन करके पाने पैने कि ऊपर अल्लाह का फेल हो गया, राइट? सो हायर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट टॉपिक्स केड़े हैं? कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट, फंडामेंटल राइट्स. ये तो बाद पॉलिटी का डिटेल च भी करावांगे, राइट? सो यूज PYQ linked conceptual clarity as well. These factual questions are actually conceptually guessable. If you reach that limit, you don't need to read current affairs, you'll guess it, है ना? You'll be able to guess it. So हुन integrate static syllabus with current affairs. एक मोटा मोटा फर्क देखियो, जब UPSC की क्लास चलती है, आई टेल यू आ न्यूज़पेपर ठीक है, ਇਹਦਾ बैकवर्ड लिंकेज, ਇਹਦਾ फॉरवर्ड लिंकेज. आई होप यू रिमेंबर वी हैड डन Mahua Mitra wali news. Mahua Mitra was challenged in the ethics committee. So backward linkages ethics committee किदे नाल बनी है, forward linkages भाई इन्नी corruption हो रही है तो की करिए, right? So UPSC in the prelims asked backward linkage, it asked ethics committee, in the mains asked forward linkage, but PCS is reverse. In the prelims they'll ask forward linkage, भाई केड़े मंत्री खिलाफ हुई सी, केड़ी constituency च सी, and in the mains they'll ask list the functions of the ethics committee. Just a second. हाँ जी, so coming back to this, PPSC actually asks you the forward linkage in the exam. You look at these questions, हमें पॉलिटी दे भी आएंगे, these ones, एक क्योटो प्रोटोकॉल, चंद्रयान दी लैंडिंग साइट, this is direct news or direct forward linkage of it, not the backward linkage. ये सीधे सीधे करंट अफेयर उदा ही पूछते हैं, राइट जी? Any problems, any issues till now? No problems, no issues. Chalo. So now starting with Indian polity, unfortunately I'll try to cover it as much as I can. So these are the topic wise breakdown. Before going there, we are going to actually cover every topic in the same sense. Every topic will start with कि की ਇਹਦਾ analysis है, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ important topics ने, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ कहानी की है ਇਹਦੀ, है ना? Every subject has a story. I know you do not expect this in a crash course, but मैनू पता भी अद्धे सब्जैक्टां दी तां सानू मैना ही नहीं पता, मीनिंग ही नहीं पता.
सो अज मेंटोस जिंदगी वाली पॉलिटी की कहानी सुनाऊंगा, हाउ पॉलिटी इज मेंटोस जिंदगी, है ना। हाउ बंदर तो बंदा बनता, राइट। बंदा बनाया किना ने, हु इज द किंग, नाउ लॉ इज द किंग, एंड हु आर द प्रिंस देन, द लॉयर्स आर द प्रिंस, राइट। सो कमिंग बैक टू दिस, वेटेज देखो जी, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क विच इंक्लूड्स प्रीएम्बल अडॉप्शन डेट्स, 25% सवाल ये तो आ रहे, बी तो 25%, the first 2-3 chapters, right? Then fundamental rights and duties 15 to 18%, but factual questions. I'll show you the questions. In fact, there's going to be a quiz today, right? First topic ਹੁੰਦਾ जी historical background. ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, analysis ਹੋ ਗਿਆ, polity ਦੀ story ਸੁਣਾਤੀ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 12 ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ quiz ਹੋਊਗਾ, so that I can test the waters. ਕੀ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ 12 ਦੇ 12 ਬਿਨਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆਨਸਰ ਕਰ ਦੋ, ਫਿਰ ਖਤਮ ਮੇਰਾ ਕੰਮ, ਪॉलिटी ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਸਿਲੇਬਸ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿਓ, है ना। बिकॉज पॉलिटी इज समथिंग यू गाइज अंडरस्टैंड। आई जस्ट गिव यू अ स्टोरी, थोड़ा जा हंस खेड लवांगे, बट पहले सीरियस काम कर लेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क डन, फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज, देन वी कम टू डीपीएसपी 5 to 8%, पार्लियामेंट। फॉर एनी पॉलिटी एग्जाम, दी कॉम्पिटिटिव जनरल सर्विसेज एग्जाम्स, आई विल रिक्वेस्ट वन थिंग, जिन्ने दिन मैं पॉलिटी पढ़ाऊंगा ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੇ ਦਿਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੈਪਟਰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰੋਗੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਵਾਲ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਆਈ ਵਿਲ ਡਿਸਓਨ ਯੂ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੜਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਲਿਟੀ। ਕੀ ਸਵਾਲ ਆਣਾ, ਮਨੀ ਬਿੱਲ 110 ਵਰਸਸ 117, ਹੈ ਨਾ। 117 ਵਾਲਾ ਲక్ష్ਮੀਕਾਂਤ ਤੋਂ ਨਾ ਪੜਿਓ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਗਲਤ ਦਿੱਤਾ ਮਨੀ ਬਿੱਲ, ਫਾਈਨਾਂਸ ਬਿੱਲ 1 and 2, देयर इज नो सच थिंग एज फाइनेंस बिल 1 and 2, राइट। 117 आर्टिकल बेयर एक्ट तो मतलब सीधा कॉन्स्टिट्यूशन तो पढ़े हो, 117 आर्टिकल। सो बिल मेकिंग प्रोविजंस, लेजिस्लेचर पावर्स, स्पीकर पावर्स, एकदम ऐ याद होना चाहिए। ट्रस्ट में 2-3 सवाल तो आने ही आने, बिल मेकिंग तो आ जाऊगा, मनी बिल तो आ जाऊगा, गवर्नर तो आ जाऊगा। सो ये वाला चैप्टर अज भी पढ़ लियो, कल भी ਇਹਦਾ ਟੈਸਟ ਲਵਾਂਗੇ, परसों भी ਇਹਦਾ ਟੈਸਟ ਲਵਾਂਗੇ, ਚੌਥ ਵੀ ਇਹਦਾ मतलब ਇਹਦੇ ਟੈਸਟ ਲਈ ਜਾਓਗੇ, हाँ जी ਲਈ ਜਾਣ। जब सवाल ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਆਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ऑस्टिन तो पढ़िया हुए हैं। Why I need to say constitution is nothing? It is everything, bro. Question आ रहे, right? So 15 to 18% over here, then 12 to 14 of president and governor. One question is ascertained कि गवर्नर ਤੇ ਆਣੇ ਹਨ। ਕਿਉਂ ਜੀ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੈਸ਼ਨ ਲਾਓ, ਗਵਰਨਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਾਂਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਬਿੱਲ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। फिर मान साहब ने क्या, वो सुप्रीम कोर्ट बढ़ गया जाके, सुप्रीम कोर्ट कहन लग गया था गवर्नर ने साइन करते, रेफर करता प्रेसिडेंट को, है ना, ही कैन रेफर इट, डिस्क्रिशनरी पावर। फिर मान साहब ने क्या जी मेरे सैशन लवा दो, मैं बिल पास कराना स्पैशल सैशन, गवर्नर मैं नहीं लाता। फिर वो सुप्रीम कोर्ट का उन्हें सैशन भी अनाउंस करता। मतलब गवर्नर ते ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵਿਗੜੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਪੱਕਾ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਚਸਕੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ ਵੀ ਕੀ ਵਿਗੜੀ ਸੀ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਗਵਰਨਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਆਣਾ, ਸਿੰਪਲ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੇ ਆਣਾ ਹੀ ਆਣਾ, ਜੇ ਨਾ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਦਊਂਗਾ, ਆਊਗਾ ਹੀ ਆਊਗਾ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਤੋਂ ਸਵਾਲ, ਰਾਈਟ। ਦੈਨ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਆਲਵੇਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਬਟ ਇਟਸ ਸਿੰਪਲ ਥਿੰਗ, ਰਾਈਟ ਜੀ। सेंटर स्टेट रिलेशंस आना चाहिए है, बट इफ यू आर बैड एट पॉलिटी तो यू माइट इग्नोर इट, एक अद्धा सवाल छड्ड भी देवांगे, है ना। Then emergency provisions and miscellaneous, fine, but what are the topics to go for? Framework, constitutional framework, number 1. Then parliament and legislatures, number 2. And president, governor and PM, CM, that is executive, number 3. And fundamental rights, number 4. Why number 4? Because fundamental rights थोड़ा जिहा लंबा है, parliament सब तो ज़्यादा लंबा है, but जरूरी है ना। विच एवर सोर्स यू रेफर टू, मेरे तो लेना मैं तो दूंगा ही, बट वन ऑफ द प्रोमिनेंट क्वेश्चन इज सर मैं तो पहले पढ़ा हुआ है, मेरे पास तो ABCD के नोट्स हैं, DCFF के नोट्स हैं, तो ठीक है उससे पढ़ लो। टेस्ट में नंबर लेके दिखाओ ना यार। पार्लियामेंट तो सबके लिए, यूनियन पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, सबके लिए सेम। आई डोंट डिसएग्री कि किसी के नोट्स बहुत घटिया और मेरे ही बढ़िया, नो नो, दैट्स नॉट द पॉइंट। द पॉइंट इज we must retain it, right? So these are the topics in chronology. We will be covering all of them thematically in detail,
बट वैन यू रिवाइज यू शुड बी श्योर। राइट जी, तो पहला की करांगे जी, कहानी ऑफ पॉलिटी, पॉलिटी दी स्टोरी। आ कि बांदर बूंदर जे चक्की फिरदे हो, तो यार पंजाब PCS ਲਈ पढ़ा रहे हैं, एक अद्धा बांदर तो चाहिए है कि नहीं चाहिए? सॉरी मेरे वीरों जेडे माइंड कर रहे हैं, बट दिस इज जस्ट फॉर द सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग। एज आई सेड इन द बिगिनिंग, वील गो फॉर एनालिसिस, then the story of polity, then the quiz, and from tomorrow we'll cover the components and topics, right? So किन्ने लोगों ने इत्थे आ वाली एडवर्टाइजमेंट देखी है? वन, ओनली वन। ऑनलाइन भी देखी है? हाँ जी, किन्ने लोगों ने आ वाली एडवर्टाइजमेंट देखी है? हुन रेज हैंड कर लो चाहे। यार लोग की टीवी टू ही नहीं देखते, चलो कोई गल नहीं, आई विल एक्सप्लेन। सो दिस इज अबाउट ए जिहड़ा बांदर है, चिंपैंजी है, ये डंकी दी सेवा करता होंदा। डंकी हैज़ 4 legs, इट्स काइंड ऑफ स्ट्रोंगर, राइट? तो फिर वो डंकी उन्होंने तंग करता होंदा, करदे करांदे राह च इनू बांदर नू मैंटोस मिल जाती। मैंटोस नाल की हुंदा जी? दिमाग की बत्ती जल जाती। So, funnily saying that when human got into, used his mind, then he could evolve. From that evolution, this is the story of evolution from a chimpanzee or ape to a man. This is the similar or the same story for evolution of polity, जो हम constitutional framework या constitutional state पढ़ रहे हैं। सही? So, just a second. यार देखो, एक मेरी रिक्वेस्ट ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਂਦਾ टाइम ਤੇ आ जाओ, नहीं तो फिर बाद च रिकॉर्डिंग देख लो, दोनों चीज़ें अवेलेबल है, राइट? डोंट गो एंड कम अगेन एंड अगेन। सो अब हमने ये सोचना है, वी हैव टू थिंक दैट वी आर दी, ओवर हेयर वी आर दी फर्स्ट पीपल ऑन अर्थ। चाहे तुसी एडम ईव मन लो, चाहे मन्नू ते वो मन लो, मन्नू ना मन्नो, मन्नू इज नॉट सो, चलो मन्नू मन लो, कोई गल नहीं। सो what happens is we are the first people। ਹੁਣ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਬਿਖਰੇ ਹੋਏ ਪੂਰੀ ਧਰਤੀ ਤੇ 5 7 10 20 ਲੋਕ ਨੇ, right? So now what do we need? What are the two primary needs? What are the two primary needs of any organism, let alone man? Nutrition and reproduction। Nutrition and reproduction, है ना? ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ? ਮੰਮੀ ਭੁੱਖ, ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਭੁੱਖ, right? That these are the two needs। सो वी आर अलोन, आप सारे अलग अलग जंगलों च घूम रहे, भुख लगी हुई है। नाउ लेट्स से मैं कोशिश करदा भी पेड़ ते चढ़ के मैनू सेब दिख गया, ये खावांगे, मैं पेड़ ते चढ़न लगदा, उत्ते बैठा होंदा बांदर, वो मारदा सिर ते, जा भज जा मेरे पे सेब, एंड थल्ले आई कैन नॉट रन अवे फ्रॉम अ टाइगर और लेपर्ड और समथिंग लाइक दैट, राइट? उत्ते सेब नहीं लै सकदा, बांदर ते चढ़ जाता, थल्ले ज़्यादा शिकार नहीं कर सकता, शेर बैठा। then what do I do? घूमते फिरते तुसी मिल जाते मैनू। नाउ वी यूज आवर माइंड, दिमाग लाने भी, नवकीरत फिट है ज़्यादा, ये स्ट्रोंग है, तुसी ज़्यादा फोकस्ड हो, तो मैं बजुर्ग हाँ तो मैं आराम नाल बैठूंगा, है ना? सो नवकीरत क्लाइम्स द ट्री, ही हिट्स द मंकी विद स्टोन्स, है ना? एंड आस्था जी कैचेस द एप्पल्स, and Kavya ji cuts them and I eat them, all of us eat, right? So we realized that group बनाने च फायदा, झुंड बना के फिर आप फिरदे हैं। सो सब तो पहला जिहड़ा झुंड बनता, क्यों बनता समझ गए? न्यूट्रिशन एंड रिप्रोडक्शन। सो सब तो पहला जिहड़ा झुंड बनता उन्होंने बोलते बैंड। बैंड इज टेंपरेरी ग्रुपिंग, राइट? फिर जब भुख मिट गई, फिर किहड़ी भुख मिटानी है? ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਅੱਜ ਕੱਲ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਜ਼ ਕੈਮਿਸਟ ਵਿਜ਼ਿਟ, ਬਟ ਅਰਲੀਅਰ ਐਂਡ ਯੂਜੂਅਲੀ ਦ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਜ਼ रिप्रोडक्शन, है ना? दैट वाज मेड फॉर प्रोक्रिएशन, वी मेड इट फॉर रिक्रिएशन। सोशियोलॉजिकली, बायोलॉजिकली इट वाज फॉर प्रोक्रिएशन, नॉट रिक्रिएशन। ऑल राइट, आई डोंट माइंड दैट, दैट्स योर ओन चॉइस। बट पहला भुख मिटाई, टैंपरेरी बैंड बनाया, सेब सूब खाए, अपना अलग अलग हो गए, राइट? जिदा क्लासा च कॉलेज च नहीं होंदा, पहले पहले दिन तो सारे झुंड बना के घूमते हैं, फिर कपल्स बन जाते हैं। सो इदा ही होया, कपल्स बन के अपना अपना रिप्रोड्यूस करी गए, फिर अगे फैमिली सिस्टम तो है नहीं, बट
ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਡੌਗਸ 'ਚ ਹੈ ਨਾ, ਡੌਗਸ ਡੂ ਨਾਟ ਹੈਵ ਦ ਫੈਮਿਲੀ ਸਿਸਟਮ, ਬਟ ਮਾਂ ਤਾਂ ਕਾਮਨ ਹੈ 20-25 ਕਤੂਰਿਆਂ ਦੀ, है ना. Sorry for the non-Punjabi. About the female dogs have, at least the dogs have a common mother, right? So common mother तो जेडे चाचे भतीजे प्यो चाहे common है नहीं सी, kinship, तो फिर reproduction भी ਵੱਧਦੀ ਗਈ and grouping भी ਵੱਧਦੀ ਗਈ. ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, clan. For example today jats like Brahds हो गए, जाट लाइक हुड्डा हो गए, these are clans. हले भी clans ने, है ना. So next comes clans. Then clan ਹੋਰ ਵੱਧਦੀ ਗਈ. ਸਪੋਜ਼ ਇਮੇजिन ਇਹ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ, ਇਹ 10 4 ਤੋਂ 8 ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਇਕੱਠੇ, ਇਹ 15 ਤੋਂ 20 ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਲਗਭਗ 40 ਹੋ ਗਏ, ਆ ਹੁਣ 100 ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ. तो ट्राइब बन गया अगला ग्रुप. ट्राइब इज कबीला. कबीले का की हुंदा है, सरदार, है ना. कबीले का सरदार हो गया. बट स्टिल दिस कबीला और ट्राइब इज बेस्ड अपॉन व्हाट, हंटिंग एंड गैदरिंग. घूमते फिरते रहते हैं. कबीले का सरदार की करता है, 100-150 बंदे हैं, उन्होंने 10-20 लड़ाके रख ले, बाकी मतलब जो अपना, जिन्हें रोटी बनानी रोटी पानी कर लिया, जिन्हें लड़ाई लड़नी उन्हें लड़ाई लड़ ली. एंड सारे का मैनेजर कौन है, कबीले का सरदार, राइट. सो सरदार व्हाट डज ही चार्ज. सपोज हर्षित जी 10 सेब तोड़ के लाए, सरदार 1 ले लूगा, है ना. आस्था जी की बना के लाऊंगे, मैगी. आस्था जी मैगी लैके आए, मैगी नहीं सी उस टाइम वैसे, तो 2 चम्मच कबीले के सरदार ने मैगी लै ली. तुसी की खा के आए, की खा के आए? दाल तो मैं भी खा ली यार. और कोई नवी चीज़ सुनाओ, कोई ऐदा में जो आजकल खाने होने. 6 वाला बर्गर नहीं होंगे, की कहते उन्होंने, बेगल नहीं बर्गर ही होंगे, बेगल बेगल इन्हों तो अद्धा बेगल ले लिया. तुसी की खा के आए? दोनों चॉकलेट, डार्क चॉकलेट वाला. ठीक है, अगली बार लेके आना सबने एक. एनी हाउ, सो कबीले का सरदार की कर रहे, इधर पार्ट ले रहे. सो दिस स्टार्ट्स विद बली. बली इज स्टार्ट ऑफ टैक्सेशन. ग्रुपिंग की है जी ट्राइब, समझ गए. बट देन दिस इज बेस्ड अपॉन द ग्रुप ऑफ पीपल. बट देन इन हिस्टरी जो आप गल करिए, पैलियोलिथिक, इदा ही मीजोलिथिक, इदा ही नीओलिथिक, ये 2 एज दे विच जब चेंज होंदा तो एक बहुत वड्डी चीज़ इंसान सीख जाता. वेरी बिग इन्वेंशन, और नॉट इन्वेंशन, और डिस्कवरी यू मे से, दैट मैन स्टार्ट्स. केड़ी? नहीं, फायर नहीं. इदा दी चीज़ जेडे घूमते फिरते फूड गैदरर की जगह एक जगह रह सकते हो. एग्रीकल्चर. दिस इज द बैकबोन ऑफ द कंट्री एंड स्पैशली पंजाब. सो एक कद सिक्ख्या, न्यूलिथिक एज नूं मन्निया ही जाता है एग्रीकल्चर एज. हुण ये जिहड़ा कबीला घूमता फिरदा रहिंदा सी सरदार दे पिछे पिछे, हुण एक जगह रह लांगे, है ना. दे विल स्टे एट वन प्लेस. सो नाउ द ग्रुपिंग बिकम्स फ्रॉम पीपल बेस्ड टू टेरिटरी बेस्ड. टेरिटरी बेस्ड ग्रुप. भाई पहला सीगा एक कबीला 100 बंदे, कबीला 1, कबीला 2, कबीला 3. नाउ कबीला 1 हैज टेरिटरी 1, टेरिटरी 2, टेरिटरी लिख देना, ट्राइब ना मान लो. टेरिटरी 1, टेरिटरी 2. सो नाउ द सरदार ऑफ द पीपल हैज बिकम, केड़ा होंदा गैंग्स ऑफ वासेपुर च? खान. नहीं याद नहीं, देखी नहीं यार. की करते तुसी यार, कुछ तो देख लो, क्योंकि वो मुन्ना भैया वाली वेब सीरीज देखते हैं आप लोग. I'll actually want to learn from you guys. How do you मतलब how do you see them, how do you access them? मैनू नहीं आता. I've never seen a web series in my life. But anyhow, so कबीले का सरदार, पीपल का सरदार सी. हुण टेरिटरी का की बन गया? राजन या राजा, या इंग्लिश में बोले तो
किंग पिछले जन्म च किंग हो, है ना, वो इस जन्म च किंग है. So he becomes the king is of territory. Now he takes Bali as a share of maintaining law and order. Law and order maintain ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਲੈਂਦਾ, ਰਾਈਟ. ਸੇਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰੀਏ. ਬੀਗਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਸੇਬ, ਮੈਗੀ, ਡੋਨਟ. ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ. So he becomes the king. Next type of grouping is kingship. But ਹੁਣ kingship ਚ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? Kingship is a personal state. Personal state मतलब ਜਿਹੜਾ किंग, जे औरंगजेब किंग है तो state becomes theocratic, religion based. अकबर किंग है तो state becomes secular. तो पर्सन ਦੇ ਨਾਲ state सरकार चेंज ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ है, राइट. सो दिस इज हाईली पर्सनल स्टेट. ਹੁਣ ਚਾਹੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਚਾਹੇ ਬਾਦਲ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਏ, ਸਟੇਟ ਤਾਂ ਸੈਕੂਲਰ ਰਹੂਗੀ. ਇਟ ਕੈਨ ਨਾਟ ਬਿਕਮ ਧਰਮਵਾਦ ਜਾਂ ਥੀਓਕ੍ਰੈਟਿਕ. ਧਰਮ ਨਿਰਪੇਖ ਹੀ ਰਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਹੈ ਨਾ. ਸੋ ਹੈਂਸ ਨਾਓ ਦ ਸਟੇਟ ਬਿਕਮਸ impersonal. ਬਟ ਵਾਈ ਦ ਚੇਂਜ? ਵਾਈ ਦ ਚੇਂਜ? ਬਿਕॉज पर्सनल state became arbitrary, capricious, based upon the whims and fancies of the king. ਹੁਣ ਕਿੰਗ ਦੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਨੇ ਰੇਪ ਵੀ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦੇ ਕੇ ਛੱਡ ਦੋ. ਕਿੰਗ ਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਾ ਪਸੰਦ ਬੰਦੇ ਨੇ कि थप्पड़ भी मारता, उन्होंने कहता भी हाथी के तले दबा दे. एंड स्पेशली जब से टेरिटरी की स्टेट शुरू होती है, वुमेन की पोजीशन नीचे जाने लगती है. क्यों? बिकॉज नाउ वुमेन, शेरशाह सूरी की कहानी सुनी होनी. शेरशाह सूरी वॉज जस्ट अ सन ऑफ अ स्मॉल गवर्नर. उन्हें की करया, वो देसी का ड्रम वाला गाना नहीं, शिकार करन जांदा शेर मारन, वो सच्ची देख लेंदा कि एक बड़े जमींदार लैंड होल्डर की कुड़ी फॉरेस्ट जा रही है विद हर घोड़ा गाड़ी या एक दो बंदे, इत्थे शेर ने आना ही आना. तो शेर का शिकार करके जाता है, शेर ਉਹਦੇ ਤੇ अटैक करता शेर, और शेरशाह सूरी ਉਹਦਾ शिकार कर ਦਿੰਦਾ तो शेर का सिर ते बेहोश कुड़ी लैके जमींदार कोल ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਵਿਆਹ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਰਾਈਟ. ਦਿਸ ਇਜ਼ ਹਾਊ ਹੀ ਬਿਕੇਮ. ਜਿਹੜਾ ਤੇਜ਼ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਵੀ ਵਪਾਰ 'ਚ ਜੋੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ. ਸੋ ਵਟ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਸੇਇੰਗ ਇਜ਼ ਵੂਮਨ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਡਾਊਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, अपनी मनमर्जियां कर रहे हैं. दैट्स वाई वी हैड टू चेंज द किंगशिप इनटू कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट, राइट जी. इन्हां दा ओवरव्यू दी जगह समझ आया की सीगा जी. बैंड क्लैन एक बारी छेती ते रिवाइज करते हैं. बैंड हंटर गैदरर्स, नो फैमिली, फिर ब्रदर नेफ्यू, चाचे भतीजे, भाई भतीजे, क्लैन, राइट. फिर उसके बाद ट्राइब. ट्राइब तो अगे की होया जी, की डिस्कवर किया आपां, टेरिटरी किदां है, एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर आएगा तो किंगशिप आ गई, है ना. नाउ टेरिटोरियल एस्पेक्ट केम इनटू बीइंग. द स्टेट वाज अ पर्सनल अफेयर ऑफ द किंग एंड ही डिफाइंड द स्टेट. देन वी केम टू स्टेट पर्सनल टू इम्पर्सनल. ਇਹਦੇ ਚ एक थोड़ी जी टेक्निकल जी लाइन लिख लो, आई गेस होनी है इत्थे, हाँ आ रही. फ्रॉम रेक्स लेक्स टू we became lex rex. What do you mean by this? Law optional. King law. This means king is the law. King is the law. Here, law is the king. राजा कौन है? लॉ. रूल किता है? देयर केम द कंसेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ. रूल ऑफ लॉ. दिस इज एनी पॉलिटी क्लास, whether it is PCS, HCS, law optional, first class is this. पहला यार बेस ता बना लो. मेरी टीम ने बहुत गुस्सा किया, कहानी क्यों सुना रहे, क्रैश कोर्स है. मैं कहा जी जवाक नूं पता ही नहीं की हो रहा है,
और रट्टेबाजी ते तो एसएससी निकलना है, यूपीएससी पीसीएस ने निकलना। पहला बेस बनाओ, सवाल होंगे ही नहीं गलत, राइट। सो फ्रॉम दैट बैंड क्लैन किंगशिप क्लैन we came to territorial aspect in kingship and constitutional state, from rule of the king to rule of the law. Now we have rule of law. So what is rule of law? जो king च कमियां सी, rule of law बिल्कुल ओदा उल्टा है। You give them 3 words. JFR, just, fair and reasonable. मतलब जो जो वो गलत करता सी, कि सपोज राजे ने चोरी करी तो उन्होंने माफ, हुण च राजा चोरी करे सेम कोर्ट है। And now you will see this rule of law throughout the constitution. For example, right to equality, article 14. Equality before law, equal protection of laws. What's the difference? Equality before law and equal protection of laws, anybody? Key difference है? Right. I understood that, you get it. So, rule of law is just, fair and reasonable. So, the highest form of organisms on this earth is humans. Evolution ਦਾ end ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ? Humans. ਤੇ state ਦੀ evolution ਦਾ end ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ? Constitutional state. ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ terms ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜੀਆਂ terms ਆਉਂਦੀਆਂ? Constitution ਦੇ ਨਾਲ constitutionalism, ਇਹ ਲਿਖ ਲਿਓ please. Constitutionalism. I'll explain, पहला note down the terms as well. ये बेसिकली की है, उच्चियां ने गल्लां तेरे यार दियां, सुप्रीम कोर्ट, और कुछ नहीं। सुप्रीम कोर्ट हैज मेड दिस ड्रामा। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, एग्जैक्टली केड़ा आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन च? रूल ऑफ लॉ वाला आर्टिकल केड़ा ऑप्शनल है जी? हाँ जी, रूल ऑफ लॉ का जो एक आर्टिकल पूछा जाए, जिंदगी च ध्यान रखना आर्टिकल 14, राइट। लिमिटेड गवर्नमेंट, क्यों जी? कॉन्स्टिट्यूशन है तो आपे नहीं लिमिट होगी। कॉन्स्टिट्यूशन का तो मतलब ही सी लिमिटेड गवर्नमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब की सी? सीधा एक अक्षर च समझो, अगर एक लाइन च पहला राजा कौन बनता सी? राजे का बेटा राजा बनता सी किंगशिप च। हुण राजा कौन बनेगा? जिहड़ा हकदार होएगा। सुपर 30 मूवी, सुपर 20 कोचिंग, राइट। सो राजा कौन बनेगा? जिहड़ा हकदार होएगा। स्टेट दी हाईएस्ट एवोल्यूशन कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट। इंसान दी हाईएस्ट एवोल्यूशन, सॉरी ऑर्गेनिज्म दी ह्यूमन। कोचिंग दी योर चॉइस, राइट। सो एनी हाउ, सो लिमिटेड गवर्नमेंट हो गया। वाई? बिकॉज गद्दाफी जी, गद्दाफी वॉज द लीडर ऑफ, द डिक्टेटर ऑफ लीबिया, सीरिया और लीबिया। सीरिया में सर वो चिट्टे से, जो क्या नाम है उनका सीरिया वाले का, और जो भाग गया अभी, बशर अल असद। लीबिया। सो गद्दाफी साहब डिक्टेटर थे। ही ऑल्सो हैड अ कॉन्स्टिट्यूशन। इन्नी जी हरी जी किताब रखता है, जेब च नहीं रखते कई बजुर्ग अपने टाइम के, जो ਉਹਦੇ ਚ लिख ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਲਾਅ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਵਾਸ ਮੇਡ ਟੂ ਗਿਵ ਰਾਈਟਸ ਆਫ ਦ ਕਿੰਗ ਟੂ ਦ ਪੀਪਲ, ਰਾਈਟਸ ਆਫ ਦ ਕਿੰਗ ਟੂ ਦ ਪੀਪਲ, है ना। बट कई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं हो रहा सी, तो नवी टर्म आई कि सरकार नूं रोकण दा मतलब की है कि सरकार नजायज ना कर सके, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, राइट। दैन कॉन्स्टिट्यूशनल मोरैलिटी, ये हुण सुप्रीम कोर्ट नूं कोई बहाना नहीं मिल रहा जजमेंट देण दा। सो उन्होंने कहा कॉन्स्टिट्यूशनल मोरैलिटी इज, आ वधिया जी लाइन लिख लियो मेरे नाल, एटमोस्ट
I quote the Supreme Court. मैं कुश्ती नहीं करता कि मैं कोई होरी वर्ड ले आवा. I don't belong to any akhada. So hence utmost reverence to the provisions and precepts of the Constitution. ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है जी. I'll tell you the meaning. Utmost reverence to the provisions and precepts of the Constitution. मतलब मोरालिटी की है कॉन्स्टिट्यूशन ने, मॉरल बिहेवियर की है, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੋ, ਉਹਦੀ ਉਦਾਂ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਕਰਦੇ. That is constitutional morality, right? Then constitutional identity लिखना ਸੀ, ਇੱਥੇ morality क्यों लिखता? Last term is constitutional identity. So constitutional identity की चीज हुई, ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ बस 2-3 वर्ड लिख लो. basic structure doctrine. I'll explain how. Basic structure doctrine. So basic structure doctrine च की है जी, primarily if you go to a foreign country or you go to any land, Canada चल जाओ, कोई भी दुनिया का कोई भी दरवाजा खोल के देखो, एक तो हिंदुस्तानी निकलता ही है, बिकॉज वी आर द हाईएस्ट पॉपुलेशन, है ना. सो हाउ डू वी रिकगनाइज अपना ही बंदा, वो पैरी हथ लाऊगा बजुर्गों के, पंजाबी या हिंदी बोलूगा, है ना. सो थ्रू आर बेसिक, लेट्स से बेसिक और कोर वैल्यूज, वी आर स्टिल इंडियन, राइट. चाहे वो कैनेडा जाके कह दें भी मैं तो वो टैटू बनवा ले, कर दे मैकडोनल्ड ते काम, है ना, बट घरे आके की करता, मम्मी लस्सी पिला दो, कहता नहीं कहता. सो वी मेंटेन आर कोर वैल्यूज. दैट इज हाउ वी कैरी आर आइडेंटिटी थ्रू आउट लाइफ, थ्रू आउट जनरेशन, थ्रू आउट द नेशंस हिस्ट्री. सिमिलरली कॉन्स्टिट्यूशन carries its core values through basic structure doctrine, and hence the identity, the best or the most important function of basic structure doctrine is maintaining the identity of the constitution so that it does not become irrelevant like the Nepal constitution. Got my point? Sri Lankan constitution. When our constitution took birth with the nation, every scholar in the world said इन्ना ज़्यादा diverse देश, इन्हें 10 साल नहीं टिकना. आज 56 इंच का सीना, 70 तो ज़्यादा साल, 140 करोड़ तो ज़्यादा बंदे, वो तो ज़्यादा कपत्ते बंदे, पॉपुलेशन तो ज़्यादा इंजीनियर्स, उन्हें तो भी ज़्यादा वकील, है ना. WHO रेशियो तो बढ़िया डॉक्टर, तीजी सब तो बड़ी इकोनॉमी, PPP terms. Are we doing well? We are thriving, not vibing but thriving, right? So this is the idea. Now look at the questions. एक questions इन्होंने की करे जी, just a minute, एक गलत लाता थोड़ा जा. So anyhow, don't worry. So coming back to this discussion upon the story of polity within 30 seconds. इंसान आया जी, इंसान ने आके groupings बनाई जी. अलग अलग groupings क्यों बनाया? Nutrition and reproduction. And ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ अपने band, clan, kingship, किंगशिप का ही न्यूलिथिक एज नाल, एग्रीकल्चर नाल, ठीक है. ਉਹਦੇ बाद वाई द पर्सनल टू इम्पर्सनल स्टेट, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट, बिकॉज ऑफ आर्बिट्रेरीनेस. आर्बिट्रेरीनेस इज नाउ रिप्लेस्ड बाय रूल ऑफ लॉ. नाउ इट इज रेक्स लेक्स टू लेक्स रेक्स. रूल ऑफ लॉ इज प्रोटेक्टेड बाय आर्टिकल 14, राइट. सो नाउ कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट्स केम अराउंड इन द वर्ल्ड. द फर्स्ट रेवोल्यूशन और protest for constitutional state was Magna Carta. Magna Carta. ये कितने होया? The cradle of Magna Carta happened at the cradle of democracy. Who is the cradle? Which is the cradle? UK, United Kingdom. कद होया जी? 1215 च. 1215 च, है ना. So इधर की होंदा जी, किंग इज रूलिंग कि भाई मैं नहीं सुनता किसी की, जो मेरा मन करेगा करूंगा. तो लोगों ने कहा भाई तू टैक्स लेना ना, साडे तो बली लेना. नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन. गिव अस सर्टन राइट्स एट लीस्ट.
थोड़े जे राइट तो दे, राइट टू लाइफ तो दे, इदा ही मारी जाता। सो फ्रॉम द क्रैडल ऑफ डेमोक्रेसी वी द वर्ल्ड लर्न दिस, राइट। मैगना कार्टा होया, लोगों को कुछ हक मिले, फिर ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕਰਦੇ ਕਰਾਂਦੇ ਜਰਨੀ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਫੈਲੀ ਗਈ, ਬਟ ਮੋਟੀ ਮੋਟੀ ਜਰਨੀ ਕੀ ਹੈ, ਰਾਜੇ ਦੇ ਹੱਕ ਹੁਣ ਪ੍ਰਜਾ ਦੇ ਹੋਣ। this is where we believe as well. You said ਰਾਖੀ ਦੇ ਦਿਨ ਕਲਾਸ ਲਓ, I was alone, but ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ, right? So ਰਾਜੇ ਦੇ ਹੱਕ ਹੁਣ ਪ੍ਰਜਾ ਦੇ। this is the democracy and this is the evolution of constitutional state। ਹੁਣ next ਜਿੱਥੋਂ ਸਿਲੇਬਸ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆ ਗਈ, बट इंडिया च किदा है, there that is where लक्ष्मीकांत किताब begins, syllabus begins। but what we'll do, जे पेपर दा लेवल लेट्स से स्टेयरकेस ऑफ लेवल है, पेपर दा लेवल इत्थे है, यूपीएससी की गल कर रहे हैं, लक्ष्मीकांत दे 70% हो जाते हैं, बट अपना लेवल इत्थे रहूगा भी आ जाओ, बिकॉज वी हैव बीन स्टडिंग एंड टीचिंग कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ फॉर 15 ईयर्स, राइट। सो मतलब ही नहीं होंदा ना, राइट जी। So got my point upon evolution of the state। so now the next topic becomes logically the historical evolution of the constitution। for that we have a quiz। पहला ये तो देख लिए किन्ने पानी च हैं। बिफोर गोइंग देयर आई विल डिस्कस दैट क्विज एज वेल, हुणे चेक भी करके जावांगे, पहला मैनू चेक करन दो भाई ठीक है कि नहीं। बट बिफोर दैट टू इंपॉर्टेंट थिंग्स, देयर वर टू क्वेश्चंस। फर्स्ट वाज कि सर मैं थोड़े कोर्स नू कुछ डोनेट करना चाहना, आ जोड़े हथ, घर च जेड़ा जेड़ा कोई चाहता है ना, घर च जेड़ा बजुर्ग है, कोई माँ है, कोई दादी है, कोई नानी है, उन्होंने दे दो, मेरे वालों नहीं, आप दे वालों दो, कोई पुण्य लगूगा, कुछ होगा, राइट। वी हैव प्रॉमिस्ड तो वी हैव प्रॉमिस्ड, ये टुच्चियां गल्लां नहीं करनियां, अद्धा कोर्स करा के यार 2-4 हज़ार दे दो लेवल बच जाऊगा, मतलब इदा के मास्टर भी ने इतने, मैसेज छड़वा देने ग्रुप च 500 रुपये पा दो, थानू ये दे देंगे। भाई जी जो प्रॉमिस किया है, कॉम्पोनेंट, करंट अफेयर, टेस्ट सीरीज, एवरीथिंग वुड बी टोटली फ्री, है ना। जड़ियाँ जड़ियाँ चीज़ा विद नोट्स, यू आर गेटिंग द नोट्स, यू आर गेटिंग द पीपीटीज पीडीएफ्स, टेस्ट सीरीज भी इदा होगी, दैट इज माई गारंटी, राइट। नो मनी रिक्वायर्ड एट ऑल, जिन्होंने सोचा भी क्या, दैट इज यू डोंट नो मी, राइट। देन नेक्स्ट थिंग इज कि यार वैबसाइट तो आप किदा एक्सेस करिए। फॉर दैट आई विल हैव अ डेडिकेटेड वीडियो फॉर इट, एक 15 मिनट का सैशन बना दूंगा तो यूट्यूब पर पा देंगे वैबसाइट को किदा यूज़ करना। प्राइमरली तुसी super20ias.com ਤੇ रजिस्टर करना, कोई पैसा नहीं है, जस्ट ईमेल आईडी मेरी टीम ਨੂੰ भेजना है, दे विल टेल यू हाउ टू एक्सेस कोर्स ਦੀ एक्सेस मिल जाऊगी, सिंपल एज दैट। ਜੇ नहीं समझ आता वील हैव डेफिनेटली अ डेडिकेटेड वीडियो। ਤੇ मोड ऑफ कोर्सेज आर ऑफलाइन, ऑनलाइन एंड रिकॉर्डेड। ऑफलाइन की लिमिटेशन है 20 तो ज़्यादा आप क्लास जगह ही नहीं रखी, super20 मीनस दैट, बट फ्री कोर्स में आप मास कोर्स कोशिश की है भी सारिਆਂ ਦਾ भला हो जाए, राइट। सो ऑफलाइन ऑनलाइन रिकॉर्डेड तीनों ने अनलिमिटेड एक्सेस है, चाहे सहेली नू, यार दोस्त नू, किन्नू जिन्नी मर्जी बार दिखाओ, कोई डिवाइस रिस्ट्रिक्शन नहीं, कोई नंबर ऑफ टाइम्स रिस्ट्रिक्शन नहीं, जिन्नी मर्जी बार, जिन्ना मर्जी डिवाइस, जिन्नी मर्जी कॉपी, जिन्नी मर्जी पेस्ट, चाहे तुम चाहते हो किसी होर नू बेचना बेच दो, बिकॉज मैनू नहीं लगता तुम किस्मत खा जाओगे मेरी, है ना। रब ने बहुत कुछ दे दिता होया। सो क्विज नू मैं एक मिनट चेक करा ला, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से 15 क्वेश्चन आप करांगे। लेट मी जस्ट चेक द पीपीटी, यू टेक अ मिनट ऑफ अ ब्रेक।
हाँ जी, एनीबडी वांट्स टी कॉफ़ी एनीथिंग? चलो जी क्विज करिए फिर। चलो जी, विच एक्ट इज कंसिडर्ड द ऑडिबल ऑनलाइन? विच एक्ट इज कंसिडर्ड द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश कंट्रोल ओवर इंडिया? ए पिट्स इंडिया एक्ट, बी रेगुलेटिंग एक्ट, सी चार्टर एक्ट, डी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। दीज आर PYQs। इदा की वर्कबुक आप बनाई है, ये भी ध्यान रखियो, एक मिनट सुन लो जरा 30 सेकंड। एक वर्कबुक बनाई है PYQ सारे अज तक जिन्ने हुए हैं सारे कंपाइल करके वो प्रैक्टिस बुक बनाई है। इट इज़ बीइंग पब्लिश्ड, Amazon पे मिल जाऊगी, बुक स्टोर से मिल जाऊगी, यू कैन बाय इट, नो प्रॉब्लम। छोटी जी किताब है, जे पसंद आए कर लो, सॉल्व करके मजा आऊगा। जे नहीं लेनी हुई तो मेरे तो ले लो यार, इफ़ यू से कि भाई नहीं, राइट। सो आंसर दिस, टेक 10 seconds। चेक भी इत्थे ही करांगे, डोंट वरी। द रॉलेट एक्ट 1919 was related to provincial autonomy, repressive wartime measures, formation of Indian councils। नवकीरत जी केड़ा हैक लग रहा है? नॉलेज नहीं लानी यार, चलो नॉलेज ला लो। मैम आंसर लिखने हैं, चलो आगे चलिए। मोन्टेग्यू, क्लेम्सफोर्ड या चेलेम्सफोर्ड जैसे भी बोलो, आर एसोसिएटेड विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, 1919, 1935, 1909 एंड दीज आर PYQs। आई हैव नॉट मेड देम, दीज आर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ PPSC। हो गया जी, डन एवरीबडी? चलो जी अगला। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया हेल्ड इट्स फर्स्ट मीटिंग ऑन, लुक एट दिस क्वेश्चन, वेरी गुड बट वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। 9 दिसंबर 1946, 49, 50, 47। आप बस इसको देख लो, 46, 49, 50, 47, ਉਹਨੂੰ देखना ही नहीं, तो थोड़ी जी कॉमन जी सेंस ला लो। कॉमन सेंस इज वेरी वेरी कॉमन इन पंजाब। हु मूव द ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? नेहरू साहब, पटेल साहब, प्रसाद साहब, अंबेडकर साहब। ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन डन। Who was the chairman of the drafting committee of the Constituent Assembly? You don't need options, write it yourself। चकता जी कम ऑनलाइन वाले, कोई बोल के दस दो। हाँ जी दिख रहा है, थैंक यू। ऑन विच डेट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अडॉप्टेड? आ देखे साडी अंग्रेजी खराब है पंजाब की। एक होर है का भी है जी स्टेटमेंट की अंग्रेजी खराब होए, मतलब पल्लियों बनाई है उन्हें, कॉपी पेस्ट चंगा। सच्ची कह रहा मैं, हस रहे यार। वो कहते नहीं साढ़े अंग्रेजी वाले मास्टर नहीं आती सी, सच्ची नहीं आती यार। ऑप्शन च होंदा ना, ऑप्शन करके आसान हो गया। सो ऑन विच डेट डिड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अडॉप्टेड द, और अडॉप्ट दी नहीं, मैं गलत कह रहा जी, वो सही सी। आई एम सो सॉरी, आई रेड इट रॉन्ग, मैं भी तो इत्थों ही हूँ। अडॉप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 15 अगस्त, 26 जनवरी। हाँ जी डन। चलो जी, विच एक्ट ट्रांसफर्ड कंट्रोल ऑफ इंडिया फ्रॉम द ईस्ट इंडिया कंपनी टू द ब्रिटिश क्राउन? रेगुलेटिंग एक्ट, चार्टर एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इंडियन काउंसिल्स एक्ट। वेरी सिंपल क्वेश्चन, जे आंदा होए, जे ना आंदा तो जय माता दी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हु वॉज द प्रोविजनल और द फर्स्ट प्रेजिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? वेरी सिंपल, UPSC आज दिस क्वेश्चन। रिवर्स कॉपी हो रहा है, आ देखिए PYQ चक के उत्थे मारिया, बट उन्होंने मेरे ख्याल स्टेटमेंट बनाई नहीं, उन्होंने भी ABCD दिता सी। वेरी 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 फैक्चुअल येट वेरी सिंपल।
45 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਏ। ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਦ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਪਲਾਨ 1946 proposed which key idea? Immediate transfer of power in a unitary form, grouping of provinces into section with autonomy on certain matters, partition of India into 2 dominions, setting up the Constituent Assembly by British Parliament. By the way, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਨਸਰ ਕੀ ਵੀ officially ਹੋਏਗੀ, ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਨੰਬਰ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਮੰਨਣੇ। चलो जी, which act introduced reservation of seats for Indians in the civil services? SC Act, ST Act, EWS Act, all of the above. Indian Councils Act, Government of India Act 1919, Government of India Act 1935, Regulating Act 1773. ओ नहीं, याद है कि नहीं भूल गए? मैं सच्ची ਹੁਣ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਦੇਣਾ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਦਿਸ ਮਾਈਟ ਬੀ ਦ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਫ ਦ ਡੇ। ਦ ਆਈਡੀਆ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਿਵ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਆਫ ਸਟੇਟ ਪਾਲਿਸੀ ਵਾਸ ਬੋਰਡ ਫਰੋਮ ਵਿਚ ਕੰਟਰੀ? ਸਾਡਾ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ, ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ, ਆਇਰਲੈਂਡ, ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ। ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਸਿੰਪਲ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਸਵਾਲ ਆਪਾਂ ਦੇਖੇ PY ਕਿਉਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹ 45 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਆ ਰਹੇ। ਕਿਉਂ ਦੇਣੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 50,000, 2 ਲੱਖ, 70,000 ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਚਲਾਨਾ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਭਾਰਤ ਹੂੰ ਜਾਂ ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਹੂੰ। ਕਿਉਂ? ਨਹੀਂ, ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਐਨੀ ਹਾਊ, ਲੈਟਸ ਚੈੱਕ ਦੀ ਆਨਸਰਸ। ਕਾਪੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਬਦਲ ਲਓ, ਚੱਕੋ। नहीं नहीं, इधर मैनू देना, इन्नी नाल नहीं। आई विल नॉट अलाउ दैट। ऐसी दे दो, कॉपी बहुत भारी नहीं है। हर्षित जी आगे दे दो ना। हर्षित जी आप यहीं मेरे को दो। किन्नू नहीं मिले हूँ? हाँ, थोड़ा ही देना आ गया थोड़े को। यू टेक दिस। आपका हर्षित के पास है, आप ये रखो। जो आपके पास है उनको दे दो। चलो, लेट्स चेक इट। फर्स्ट द आंसर इज बी बॉम्बे। बी बॉम्बे। सेकंड द आंसर इज बी बॉम्बे। थर्ड बी बॉम्बे अगेन। फोर्थ ए अमेरिका। फिफ्थ ए अमेरिका। सिक्स्थ बी बॉम्बे। सेवेंथ बी बॉम्बे। एट्थ सी चंडीगढ़। नाइन्थ सी चंडीगढ़। 10th B Bombay. I know it's Mumbai, but B Bombay, right? 10th B Bombay, 11th A America, 12th B Bombay. 1 B Bombay, 2 B Bombay, 3 B Bombay. हो गए सारे चेक। बॉम्बे बॉम्बे बॉम्बे। Why it is Bombay? Because official आंसर की है। कल मैं आप लेके आया सी बॉम्बे बॉम्बे सी, ऑफिशियल आंसर की बॉम्बे बॉम्बे। ये मजाक है, पेपर नहीं है। आराम नाल निकलना वा, दिमाग लाओ, मैंटोस खा लो। मतलब नॉट मैंटोस, दिमाग की बत्ती चलानी है बस। इट इजंट इवन एक्चुअली अ टेस्ट। प्रीलिम तो जस्ट एक एक IPS ने कहा सी, सर प्रीलिम तो कूड़ा है। तो मैनू बहुत बुरा लग्या सी, हले फर्स्ट प्रीलिम देना सी। सीधा दिल ते छुरी वजी कि ਵੀਰੇ जे ना होया इन्हें तो झाड़ू ही दे देना मैनू। सो हाउ मैनी हैव 12 on 12? ऑनलाइन वाले भी साथ में ले लेते हैं ना। हाँ जी, मैसेजेस लिख सकते हो तुसी प्लीज़। 12 on 12, 11 11 कौन है? किदी कोल 11 है? 11 करेक्ट। थोड़े कोल 11 है? किदी कापी है? नवकीरत हैज़ 11। चॉकलेट नहीं है, सॉरी, आज करंट अफेयर से मिलती है। सो सॉरी, आई ओ यू 1। 10। हाँ जी, कोई ना 10। 2 ऑप्शन, नेगेटिव मार्किंग। 10 एनीबडी? 9, 8 8 कौन कौन है? थोड़ी एक ही कॉपी है। 8 7 6 5 4 5 हो। I won't say anything, right? So going ahead with this ending over here again. Now the next class would be, आज तो आप मेरे को देख देख के बोर होने वाले हैं। अभी आधे घंटे में फिर आ रहा हूँ। 5-10 मिनट एक्सक्यूज़ करें। वो क्लास यूट्यूब पे आएगी लाइव। दैट वुड बी डीलिंग विद
economic survey, right? So 5, 30, 40, 30 we begin, about 30, right? Who has to leave can leave, I don't mind. If somebody is waiting या काली है थोनू या कुछ हैगा, ਜਿਹੜੇ ऑनलाइन वाले भी हैं, भाई मैं रिकॉर्डेड देखांगा, देख लो, आई डोंट माइंड, राइट? ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੱਕੋ ਰਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜਾਂ XYZ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਪਾਸ ਹੋਈਦਾ। देयर आर n नंबर ऑफ वेज, लाइक एवरी रिवर रीचेस द ओशन बट कैरीज अ डिफरेंट पाथ। कोई प्लेन्स तो होके जाती है, कोई क्रीक तो होके जाती है, कोई माउंटेन तो सीधा बढ़ जाती है ना? वो डेस्टिनेशन वही है बट राह बहुत सारे हैं। इफ़ यू हैव सर्टन बेंट ऑफ माइंड यू कैन डू इट। जो नहीं समझ आ रहा वी आर हेयर टू हेल्प, है ना? फॉर एग्जाम्पल आई सैड 45 रुपए की किताब आती है अरिहंत दी मनोहर पांडे, 30% ऑफ द एग्जाम इज देयर, इन्नी जी किताब है, जी के है, होर कुछ नहीं है किताब। मैं नहीं बेचता, मेरा नहीं अरिहंत, ना मैं मनोहर पांडे है, शक्लों में नहीं लगता, है ना? मैं चुलबुल पांडे हो सकता, मनोहर पांडे तो हो नहीं सकता। सो एनी हाउ we'll keep on doing components like this with analysis, with coverage of the component, the story of the subject, then coverage। आज की करें आप ओवरऑल एनालिसिस कर लिया, then पॉलिटी का स्पेसिफिक एनालिसिस कर लिया, पॉलिटी की स्टोरी सुन ली, प्रैक्टिस कर ले सवाल। कल तो फिर टॉपिक वाइज शुरू हो जाएंगे। 10 क्लासां रखी ना, टाइम टेबल थोड़े को है, शेड्यूल हैगा। सो वील कवर इट, then the next subject, then the next subject, then the next subject। 2 सब्जेक्ट्स नाल चल रहे हैं तो कल दूजे सब्जेक्ट की कहानी। किहड़ा सब्जेक्ट है जी? टाइम टेबल थोड़ा बेस्ट फ्रेंड है। यू नो ये जिहड़े पेपर जब तक आ रहा, कदा पेपर? अक्टूबर 26। ओनली वन थिंग यू डोंट हैव इज टाइम। थोड़े कोल सिर्फ एक चीज़ का क्रंच है, टाइम, एंड इनू मैनेज करने लई थोड़ा बेस्ट फ्रेंड हले कोई भी होए, चंटू बंटू शंटू गोल्डी, बट फॉर दीज डेज योर बेस्ट फ्रेंड इज टाइम टेबल। टाइम टेबल, राइट? सो इवन इफ यू हैव टू स्पेंड मनी टू सेव टाइम, पैदल आने की जगह उबर पे आ जाओ, खुद चलाने की जगह टैक्सी पे आ जाओ, पढ़ते हुए आ जाओ, है ना? अच्छा लगता है गाड़ी चलाना अच्छे वेदर में, सारी उम्र गड्डी हो चलानी है, ड्राइवर को कह दो पीछे बह जा, मैं चलानी है या मैं चलाना, है ना? सो सेव टाइम, दैट इज द ओनली थिंग विच इज लिमिटेड, राइट जी? विद दिस आई एंड दिस फर्स्ट क्लास ऑफ पॉलिटी। एनी डाउट्स, एनी प्रॉब्लम्स, एनीबडी तो प्लीज़ दस दो, नहीं तो फिर अगली बार मिलते हैं। चरणप्रीत कौर हैज़ रेज्ड अ हैंड, ओपन क्यू। बताइए जी क्या बात है? हाँ जी, आपस से कर लो। एनी क्वेश्चंस, एनी प्रॉब्लम्स, एनी डाउट्स, एनीबडी? नो। चलो जी, फिर अगेन वी एंड विद दिस, दैट टुगेदर वी कैन एंड वी विल succeed and conquer this exam. Thank you so much for coming. See you next time.